Good morning, students. I am Neelam, your math teacher from JPS Academy. As you know, students, that yesterday we completed our exercise 5C, which was based on algebraic expressions and arithmetic expressions. So, students, today we are going to start our next topic, algebra in real life. And students, we are on book page number 80. Students, algebra in real life. Algebra is the name of this chapter in which we are dealing with the symbols and the rules and manipulating those rules. So students, now we will study how these rules and symbols or expressions, how it can be applicable in our real life context. सो स्टूडेंट्स, हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे साथ जो भी सिंबल्स, जो भी रूल्स यूज होते हैं, वो किस तरीके से यूज होते हैं, अब हम उनको अलजेब्रा की फॉर्म में स्टडी करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट इन अलजेब्रा फॉर्म, फर्स्टली वी वांट टू नो अबाउट algebraic equations. Students, yesterday you know all that we studied about algebraic expressions. वहां वर्ड था algebraic expressions, जहां हमने स्टडी किया था combination of variables and numbers connected with the sign, addition, subtraction, multiplication or division. So students, today we will discuss algebraic equations. इक्वेशंस, नेम से ही क्लियर हो रहा है. इक्वेशंस मीन्स वो algebraic एक्सप्रेशंस जो इक्वल साइन के साथ यूज हो. इज इट क्लियर? मीन्स अ स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. इक्वेशन वर्ड से क्लियर हो रहा है इक्वल का साइन. सो स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज बिटवीन दीज टू एक्सरसाइज, because in 5C you studied about expressions and now in 5D you will study about algebraic equations. 5D exercise में students आपको equations मिलेंगी, algebraic equations in which we will use equal sign between the two expressions. So students, let's come and firstly we will discuss about algebraic equations. Students, here I am taking example that 8 minus 3 and students 8 में से 3 माइनस करते हैं तो इक्वालिटी में क्या मिलता है हमें? 5. So here this is mathematical expression and this is also mathematical expression. These are two mathematical expressions, not algebraic. algebraic होती तो students वहां वेरिएबल का होना मस्ट था, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन एक्सप्रेशंस में आपको algebraic नहीं मिल सकती. नो, आपको algebraic एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं. सो स्टूडेंट्स, कोई भी टू एक्सप्रेशंस जब वो इक्वालिटी साइन के साथ आती हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? algebraic इक्वेशंस. और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाली को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन. जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे होगी उसको LHS बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर होती है उस एक्सप्रेशन को हम RHS बोलते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक algebraic एक्सप्रेशन ली 5x plus 3. दिस इज algebraic एक्सप्रेशन, ओनली दिस. और सेकेंड राइट साइड पे मैंने क्या टेक किया? कोई भी नंबर 17, और दोनों को मैंने इक्वल साइन के साथ टेक किया. सो जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, when two mathematical expressions comes with the equality sign, then this will become algebraic equations. Okay students, so this is algebraic equation. So come to the definition. A statement where two mathematical expressions are separated by the sign of equality is called an algebraic equation. An equation has equal sign between two sides, and the two sides which is using left hand side and right hand side. So students,
any two mathematical expressions with the equality sign is known as algebraic equation. So students, we will use these algebraic expressions in our real life context. So let's come and start exercise 5D. And students, exercise 5D, question number 1 statement is write an algebraic equation for the following. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको इनके लिए क्या करके दिखाना है, algebraic इक्वेशन को राइट करके दिखाना है. सो लेट्स कम. ए पार्ट इज लता इज Z years old. Z वेरिएबल फॉर्म में गिवन है. फाइंड हर एज आफ्टर 30 years. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नल एग्जाम्पल टेक करती हूँ आपकी रियल लाइफ के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आप अभी 12 years के हो और मैं बोलूं आफ्टर 10 years फाइंड योर एज आफ्टर 10 years. तो स्टूडेंट्स 10 years के बाद आप क्या हो जाओगे, क्या एज हो जाएगी आपकी, तो आप 12 में 10 को क्या करोगे, ऐड. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम लाइक दिस. लता अभी कितने ईयर्स की है, Z, और 30 years के बाद वो कितनी हो जाएगी, उसमें ऐड कर देंगे 30. सो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई मेरे पास, Z plus 30 years. सो दिस इज algebraic इक्वेशन. बट Z वेरिएबल है, यहां उसकी कोई भी एज अगर हम गिवन होती उसको टेक करते और उसमें 30 ऐड करते तो इक्वल साइन में हमें आंसर मिल जाता. सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ इक्वल साइन क्यों नहीं है, बिकॉज हेयर Z इज वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स. नाउ बी पार्ट. 7 times अ नंबर. एक नंबर का 7 times. तो मैं वो नंबर ले लेती हूँ स्टूडेंट्स. कोई भी नंबर टेक किया मैंने, नंबर आपको गिवन है n. अगर कोई नंबर नहीं भी गिवन होता तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर टेक करोगे. 7 times अ नंबर n, इसका 7 times करूंगी तो कितना हो जाएगा, 7n. इज का मीनिंग इज इक्वल है m लेस देन किससे, 4 times अ नंबर p. एक नंबर p का 4 times कर दो, उससे m लेस है, लेस देन मीन्स उससे, किससे, 4 times अ नंबर p. एक नंबर p का 4 times लिया, 4p बन गया, उसमें से m लेस है, कौन लेस है, इज 7 times अ नंबर n. सो 7 times अ नंबर n is m less than 4 times a number p. 7n is equals to 4p minus 1. Now C part. The product of 9 and a number x. एक नंबर 9 है, एक नंबर x है, दोनों का प्रोडक्ट किया 9x is 36 means is equals to 36. So this is the first 3 parts of exercise 5D. Now come on D part. थ्राइज अ नंबर. एक नंबर का थ्राइज मीन्स 3 times. तो थ्राइज लिया, एक नंबर लिया मैंने x, उसका थ्राइज लिया 3x, एडेड टू 6, उसमें क्या ऐड किया 6, और गिव्स मतलब देगा, क्या देगा, मीन्स इक्वल क्या देगा, 27. नाउ ई पार्ट. द 2 numbers are such that, this part is very important students. The 2 numbers are such that, 2 numbers इस तरीके से हैं, one of them, उनमें से एक, exceed the other by 16. उनमें से एक नंबर दूसरे से क्या है, exceed means ज्यादा, कितना ज्यादा, 16. So students, 2 नंबर है, 2 नंबर, the 2 numbers are such that, मुझे नहीं पता वो 2 नंबर कौन कौन से हैं. वन ऑफ देम, उनमें से एक मैंने लेट कर लिया x, एक्सीड द अदर बाय 16. उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 16 ज्यादा है. तो एक नंबर, फर्स्ट नंबर अगर मैंने लेट x किया तो दूसरे वाला क्या है, उससे 16 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, x plus 16. स्टूडेंट समझ आया. कोई भी 2 नंबर हैं, मुझे नहीं पता वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, वन ऑफ देम, अदर,
दोनों के लिए ये वर्ड यूज हुए हैं, तो मैंने लेट किया फर्स्ट नंबर x है। अब दूसरे वाला क्या कह रहा है, वन ऑफ देम एक्सीड द अदर, एक नंबर दूसरे वाले से एक्सीड मीन्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बाय 16। तो अगर एक नंबर x है, दूसरे वाला उससे 16 ज्यादा है, तो दूसरा क्या बनेगा, x प्लस 16। एंड देयर सम इज, और उन दोनों का सम एड किसके इक्वल है, इज इक्वल है किसके, 84 के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, x plus 16 is equals to 84. Now come on the next questions in my next video. Thanks and have a nice day.